So, good morning dear students. Today I am going to start the new chapter from the same class 12 Alternative English. So, the topic is The Verger, written by William Somerset Maugham. So, in this story, some characters I have mentioned here. The first one is the Verger, second is the Vicar, and third characters which is mentioning a little bit glimpses in the story, that is the two churchwardens. So, before starting the chapter, let's know a little bit about what is the title of The Verger means here. Okay, so The Verger, so as far as the title suggests, an insider character, you will get the character of the Verger here. So now what is the meaning of the Verger? So Verger is one kind of caretaker. So Verger किसे कहते हैं? जो caretaker होता है. So caretaker also one of the positions and one of the post inside the story you will get. Okay, and second one is the Vicar. So who is the Vicar here? Vicar here known as a priest. Okay, so priest of the church. So priest किसे बोलते हैं? जो पुजारी होते हैं, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में जो टेम्पल का पुजारी होते हैं उनको priest बोला जाता है. But in the church which is related with the Christian religion, so in their church, so whom they have appointed as a head of that particular worship place, and that person here known as the vicar. Okay, so vicar means priest. So next third character which is mentioned in the story is two churchwardens. So two churchwardens, they are the old persons, old aged persons who used to work together with the Verger since he has been joined in the same church. Okay, so now we are going to discuss in detail about the story. Okay, let's start from the beginning. So about the author, what has been mentioning about the author, let's check here first of all. You see The Verger, written by William Somerset Maugham. So before starting the chapter, let's know a little bit about the author. So author বিষয়ে আমি অলপ জানি লওঁ প্ৰথমে. তো author বিষয়ে ইয়াত কি কোৱা আছে? Among the most popular English writer of the early 20th century, William Somerset Maugham has to his credit several plays, novels, and short story writer. So William Somerset Maugham, he is a short story writer. He was a plays writer. He was William Somerset Maugham, he was a short story writer, he was a dramatist, even he was a novelist also. Okay, so but he has a lots of contributions towards the fiction, so he is more popularized himself as a fiction writer. So after that, now we are going directly towards the chapter. So now I'm begin to read the first line of the same topic, that is the Verger. So यहाँ पर क्या होता है? There had been a christening that afternoon at St. Peter's Neville Square, and Albert Edward Foreman still wore his Verger's gown. He kept his new one, its folds as full and stiff as though it were made not of alpaca but of perennial bronze. For the funerals and weddings, St. Peter's Neville Square was a church much favored by the fashionable for these ceremonies, and now he wore only his second best. So as far as the story begins, तो वहाँ पर क्या होता है? The location of the story is at where? One of the church. Okay, one of the worship place of the Christian community. So where was the church located? वो church कहाँ पर है? So लंदन का जो नेविल स्क्वायर है, so नेविल स्क्वायर नाम का एक जगह पे ये चर्च क्या है? सिचुएटेड है. और जिस चर्च का नाम यहाँ पर क्या है? सेंट पीटर्स चर्च. So उस सेंट पीटर चर्च पे उस दिन क्या कौन सा सेरेमनीज था? क्रिस्टियनिंग. So now what is the meaning of christening? Christening is one kind of functions, one kind of occasion जहाँ पर क्या होता है? न्यू बॉर्न बेबी का नेम सेरेमनी, मीन्स नेम गिवन सेरेमनी, जिसको यहाँ पर क्रिस्टियनिंग बोला गया है. तो सेंट पीटर चर्च पे उस दिन एक क्रिस्टियनिंग ओकेजन था, तो वो ओकेजन ऑलरेडी समाप्त हो गया. और जो वर्जर जो है उस दिन उस फंक्शन में क्या पहना था? तो उनका एक ड्रेस कोड होता है, मतलब एक गाउन होता है. ओके, वर्जर का एक गाउन होता है, इट इज वन काइंड ऑफ ड्रेस कोड. तो उस दिन उस ओकेजन पे उन्होंने जो नया वाला उनको दिया गया था वो नहीं पहना था, पुराना वाला गाउन पहन के उन्होंने वो फंक्शन अटेंड किया था. तो फंक्शन खत्म हो चुका है, हालांकि फिर भी उनके शरीर पे वो गाउन पहने हुए थे. तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि द वर्जर हैज मच अटैचमेंट विद द गाउन. ओके, सो नाउ The Verger has been working in the same church. वो सेम चर्च पे 16 years से काम कर रहा है. तो 16 years में उन्होंने बहुत सारा कलेक्शन किया है गाउन का.
तो चार्ल्स अथॉरिटी उनको एवरी ईयर्स नया नया गाउन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या करते हैं, सारे गाउन को 16 ईयर्स पहले भी उनको जो गाउन मिला था आज भी वो उनको अच्छी तरह से संभाल के रखा है। और वो अपनी वर्ड को मतलब बहुत डिग्निटीफुली लेते हैं, वो अपने वर्ड्स को बहुत लाइक करते हैं, डिवोशनली अपना वो क्या करते हैं, अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था, नया होने के बावजूद भी उन्होंने उस दिन एक पुराना वाला गाउन पहना हुआ था। हालांकि ये ओकेजन खत्म हो चुका है, फिर भी उसके शरीर से उन्होंने उस गाउन को नहीं निकाला, मतलब उतार के नहीं रखा था। तो इसी से ये प्रमाण होता है कि उनका अपने प्रोफेशंस के प्रति, उस प्रोफेशन से रिलेटेड हर चीज के प्रति उनका बहुत सारा क्या था, लव एंड अफेक्शन बहुत ज्यादा था। हम लोग को यहाँ पर ये पता चलता है। और वो अपने गाउन को किस प्रकार ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है। सो ब्रॉन्ज इट इज द प्रीशियस मेटल। तो उनको लगता है कि उनका जो गाउन है वो ब्रॉन्ज से बनाया हुआ है, मतलब बहुत प्रीशियस है उनके लिए, बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन इन रियलिटी इनका जो गाउन हो वो किसके साथ बनाया गया था, ये अल्पाका। सो क्या बोला यहाँ पे, अल्पाका। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्पाका? अल्पाका इज वन काइंड ऑफ वूलन एनिमल। ओके, ये एक एनिमल है। तो इस एनिमल के फर से क्या बनाया गया था, वर्जर का गाउन बनाया गया था। लेकिन जैसे मतलब एनिमल का फर मतलब एज कंपैरेटिवली विद द ब्रॉन्ज इट इज ए लिटिल बिट एज अ वैल्यू इज ए लिटिल बिट डाउन, मतलब इसका प्राइस कम है। लेकिन उनके लिए ये बहुत सारा महत्वपूर्ण और प्राइसलेस कमोडिटी है, ऐसा वर्जर हमेशा अपने गाउन के साथ ट्रीटमेंट करते थे। So these are the things mentioned in the page number 28 in the first paragraph. So after that what happened? वो हमेशा अपने जो गाउन होते हैं उसको ब्राउन पेपर में रैप करके, जो वार्डरोब है उनका घर का, तो वार्डरोब में वो क्या करते हैं, अंदर में घुसा के रखते हैं। और जितना भी पुराना हो, जो मतलब टूटने के आधार पर है, मतलब खराब हो चुका है सारा कपड़ा गाउन का, बिकॉज दीज आर ऑल द स्टॉक ऑफ बिफोर ऑफ 16 ईयर्स। सो क्या करते हैं वो, फिर उसको प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं, ब्राउन पेपर में रैप करके वार्डरोब में वो हमेशा अपने घर में संभाल के रखते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल गेट 2 marks क्वेश्चन, हाउ डिड द वर्जर ट्रीट हिज गाउन। ओके, सो रिगार्डिंग ऑन दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर क्या बोला, the Verger busied himself quietly replacing the painted wooden cover on the marble font, taking away a chair that had been brought for an infirm old lady, waited for the vicar to have finished all the vestige so that he could tidy up India and go home. Presently, he saw him walk across the channel, genuflect in front of the high altar and come down the aisle, but he still wore his cassock. Now you see, the Verger ने क्या किया, जो occasion हुआ था तब एक इन्फॉर्म मतलब एक वीक लेडी भी आए थे उस फैमिली से जिस बच्चे का नामकरण हो रहा था उस ओकेजन पे। तो उस लेडी के लिए वर्जर ने क्या किया था, एक चेयर लाके वहां पर रखा था। सो फॉन्ट में रखा था। यहाँ पर फॉन्ट मतलब क्या है, एज फार एज क्रिश्चियन कम्युनिटी, जैसे हमारे घर में जो किसी किसी के घर में क्या होता है, बट टब होता है ना, और स्विमिंग पूल होता है। सो ऐसे ही चर्च में क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे क्या होता है, पानी रखा जाता है। तो उन लोगों का कुछ रिचुअल्स है, पानी में डुबकी लगाते क्या करता है, दे प्यूरिफाई देमसेल्फ। सो दिस प्लेस हियर नोन एज अ फॉन्ट। ओके, तो नामकरण के टाइम पे क्या हुआ था, एक वीक लेडी के लिए उन्होंने एक चेयर लाया था। उस चेयर को जहां से लाया था वहां उन्होंने रख दिया। सारा चीज यहाँ से वहां बिखरा हुआ था, हर चीज को वर्जन ने अब पूरी तरह से समाप्त कर लिया, सारा काम खत्म कर लिया। और वो फाइनली किसके लिए वेट कर रहा है, विकार के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि उनका एक हैबिट था, हर रोज अपना ड्यूटी खत्म करके वो अपने घर में जाके अपने पत्नी के साथ एक कप चाय पीते हैं। सो नाउ ही वाज लॉन्गिंग फॉर दैट कप ऑफ टी अलोंग विद हिज वाइफ, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि विकार नहीं आ रहा है, विकार हु इज इन द हेड पोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चर्चेस। सो जब तक वो ना आए तब तक वो वहां से नहीं जा सकता है। ठीक है, जाने से पहले उसको सारा काम खत्म करके सारा अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको समझा के उसको वहां से निकलना था। तो वहां पर वो बैठ के क्या कर रहा था, विकार के लिए इंतजार कर रहा था। जब इंतजार कर रहा था तो देखा कि विकार आ रहा है। सो जैसे चर्च में क्या होता है, दोनों साइड चेयर्स का रोज होता है, बीच में एक क्या होता है, नैरो स्पेस होता है, जो जहां से पैदल जाके लोग, जहां पर उन लोग का गॉड रहता है ऑल्टर, वहां तक लोग जाके प्रे करता है नील डाउन करके। तो उसी प्लेस में से अब फाइनली क्या हो रहा है, विकार पैदल आ रहा है किसकी ओर, वर्जर की ओर। ऐसा वर्जर ने देखा। अच्छा, उसके बाद इन पेज नंबर 29
तो वहां पर क्या होता है, द विकार हैड बीन but recently appointed a red-faced energetic man in the early 40s and Albert Edwards still regretted his predecessors. ये जो नया विकार है सेंट पीटर चर्च पे, उनको रिसेंटली वहां पर अपॉइंट किया गया था। सो लास्ट वन वाला का देहांत हो गया था, तो उनकी मृत्यु के बाद ये नया विकार वहां पर अपॉइंट किया गया। और ये जो नया विकार है वो कहाँ से आया, ईस्ट एंड से, EAST, ईस्ट, END। तो ईस्ट एंड क्या है, इट इज वन ऑफ द लोकल प्लेस ऑफ द लंदन। तो ये लंदन शहर का एक लोकल एरिया है ईस्ट एंड, जहां से इस नया विकार को अपॉइंट किया गया है। और ये नया जो विकार वहां पर अपॉइंट हुआ है, उनका एज कितना होगा, नियर अबाउट 40s एंड ही इज ए वेल एजुकेटेड एंड एनर्जेटिक एंड रेड फेस्ड मैन। ओके, सो इस नया विकार को मिलने के बाद हमारे भरचर को कौन याद आ रहा है यहाँ पर, वहां का जो पुराना विकार है, तो उनके बारे में, उनका मेमोरीज में वो चला जाता है कि वो कितना अच्छा इंसान था। मतलब कोई भी काम में कभी भी इंटरप्ट नहीं करते थे, जिसको जैसा करना है करो, बस कुछ भी मतलब ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए सेंट पीटर चर्च में, मतलब हर चीज स्मूथली होना चाहिए, बट एवरीबॉडी शुड टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म देयर ड्यूटी। सो दैट काइंड ऑफ authority has given by the last one vicar to everyone who is connected with the Saint Peter Church. But this new vicar one is not like that. ये जो नया वाला है वो totally उसका opposite था। ये कैसा था, he should take everything under his spine, मतलब अपनी उंगली में नचाने वाला, अपने मुताबिक करवाने वाला, वो जैसा चाहे, वो जैसा सोचे, हर कोई उसकी मुताबिक चले, इस प्रकार का मेंटेलिटी का ये नया वाला विकार था। तो जिसलिए आज यहाँ भरचर को पुराना वाला याद कर रहा है, और दोनों में यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, जब तक वो उस नया विकार के साथ फेस टू फेस यहाँ पर बात ना हो। ओके, ड्यूरिंग हिज वर्किंग आवर ही रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। एंड फाइनली क्या हुआ, तो ये नया विकार उसके नजदीक आ गया, तो दोनों में आप बात करने लगे। All this hostile said Albert Edward, but give him time, he will learn। यहाँ पर भरचर अपने आप से बोल रहा है, ये नया है, तो ये यंग भी है, एनर्जेटिक है, चलो इसको टाइम दिया जाते हैं, ये धीरे धीरे ये भी पहले की तरह पुराना वाला विकार के जैसा बन ही जाएगा एक दिन, तो इसको टाइम देते हैं। तो विकार, द भरचर इज टू समवेयर ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ओके, अबाउट द कैरेक्टर ऑफ दिस न्यू वन विकार। So when the vicar had walked down the aisle so far that he could address the verger without raising his voice more than was becoming in a place of worship, he stopped. Foreman, will you come into the vestry for a minute? I have something to say to you. Very good, sir. Finally, vicar उनके नजदीक आया। आने के बाद नया विकार ने फॉरमैन को एड्रेसिंग किया। फॉरमैन मतलब फॉरमैन, एडवर्ड फॉरमैन, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करना है, क्या तुम वेस्ट्री रूम में आ सकते हो? सो वेस्ट्री रूम इट इज वन काइंड ऑफ रेस्टिंग रूम, जहां पर बैठ के वो लोग खाना खाते हैं, अपने कपड़े वगैरह रिलेटेड सामान रखते हैं। तो इस रूम पे यहाँ पर नया जो विकार है उन्होंने भरचर को बुलाया कि आप तुम वहां तक उस रूम पे आइए। तो भरचर ने बोला ठीक है, वेरी गुड सर। द विकार वेटेड हिम टू कम अप एंड दे वॉक अप द चर्च टुगेदर। फाइनली विकार उनके लिए इंतजार किया, भरचर ने अपना सारा काम खत्म किया और दोनों एक साथ वेस्ट्री रूम के लिए आगे बढ़ता गया। जब दोनों वॉक करके जा रहा था तो यहाँ पर भरचर ने उनके साथ बात करना शुरू किया, रिलेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर डे का जिस दिन में वहां पर क्रिस्टियनिंग था, फंक्शन था, उसके बारे में बात किया। तो यहाँ पर भरचर क्या करते हैं, विकार को प्रेज करते हैं कि आपके अंदर ऐसा कुछ स्पेशल क्वालिटी है। जब वो बच्चा रो रहा था, जैसे ही विकार ने उस बच्चे को गोदी में लिया, बच्चा ने रोना बंद कर दिया। सो तब भरचर क्या बोलता है, यू हैव सच काइंड ऑफ स्पेशल टैलेंट एंड क्वालिटी। इस बात को सुनते ही नया जो विकार है वो फूल जाता है, और वो बोलते हैं अपने आप को, वो बोलते हैं कि मैं तो एक नर्स से भी ज्यादा, एक मदर से भी ज्यादा एक बच्चे को पेसिफाई कर सकती हूँ। दैट वाज द क्वालिटी ऑफ मी, ही आल्सो सेड हिमसेल्फ टू लाइक दैट। तो इन पेज नंबर 32 में क्या होते हैं, बट कुड नॉट यू अच्छा, पेज नंबर 32 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। फाइनली वो लोग वेस्ट्री रूम में पहुंच जाते हैं। तो वेस्ट्री रूम में पहुंचने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर डिस्क्लोज हो जाता है। भरचर को वहां जाते ही क्या होते हैं, शॉक्ड एंड सरप्राइज हो जाता है, पेज नंबर 30 पे। ओके, सो इन पेज नंबर 30 द भरचर वाज शॉक्ड आफ्टर रीचिंग एट द वेस्ट्री रूम। जैसे ही वो वेस्ट्री रूम में एंट्री करते हैं, वहां उनको 2 चार्ज वार्डन मिलते हैं, द 2 चार्ज वार्डन्स। ओके, सो 2 चार्ज वार्डन मिलते हैं और देखते हैं, एक दूसरे को greet करते हैं, गुड आफ्टरनून टू ईच अदर, एंड एट द सेम टाइम सच काइंड ऑफ थिंकिंग इज गोइंग ऑन इन द भरचर्स माइंड
क्या हो रहा है, कौन सी इश्यू पे यहाँ पर बात होने वाला है, क्या मेजर इश्यू है, क्या हो गया है, क्यों हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये सब थॉट्स जब उनके अंदर चल रहा था तब क्या करते हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पेज नंबर 30। हाँ, सो पेज नंबर 30 में अचानक से क्या बोलते हैं, ये जो नया जो विकार है वो भट्टाचार्य को बताते हैं कि आई हैव कम टू नो समथिंग वेरी सीरियस अबाउट यू, मुझे ऐसा कुछ पता चला है तुम्हारे बारे में जो बहुत सीरियस है, हम उसी मैटर पर यहाँ पर डिस्कस करने फाइनली इकट्ठा हुए हैं। तो ये कौन सी बात है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट।